reputational universities. So like you have MIT, you have Harvard there, you have Boston University there. This Worcester Polytechnic Institute, it's like in the suburbs of the Boston area. It's like 40 minutes drive from the Boston area. And this Worcester city, that's basically, it's all university town. So in the US, when you are driving to a particular state or the city, before entering to that city, they have like the billboards, which showcases the attractions of that state or that city. So उसमें आएगा कि ये म्यूजियम्स हैं, ये नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, या ये कोई और चीज़ें हैं. जब आप बूस्टर में टर्न करने जाते हैं, तो जहाँ पे बिलबोर्ड आता है, it has a list of 6 universities as its attractions. उसके अलावा कोई और खास attraction वहाँ पे है नहीं, but it's like a university hub. उसका फायदा ये हुआ था कि it has lots of diversity. जिस एरिया में आपकी diversity ज़्यादा होती है, वहाँ पे racism भी फिर कम आप face करते हैं. So I did my PhD 2013 when I started that. I finished in 2019. मेरा राधा 2018 में finish करने का था, but in the last year, my husband out of a sudden decided that he would like to pursue his masters while we are there. पहले 5 साल I don't know क्यों नहीं बना. So last he decided that just when I was about to graduate, he started his masters. So I asked my PhD advisor. फिर उन्होंने कहा था कि you can continue next year on the university funding as well. So that last year I spent there. I completed my PhD on the university funding. और फिर उसमें मैंने टीएशिप भी की. मैंने मुझे चांस मिला था एक कोर्स पढ़ाने का. So I taught the algorithms course to the undergrad of 70 students. It was a wonderful experience. और फिर finally उसका फायदा मुझे ये हो गया कि after my PhD ended, I had the option to do 3 years. It's called academic training. If you're aware, FL students do the OPT. On the J1 students, they allow you the academic training. So that is allowed for 3 years. So I did that 3 years over there as well. So FAST and ताल्लुक की बात करें, I have my bachelor's as well as my master's degree from FAST. Bachelor's degree, I completed that in 2003. Master's 2012 में था. Both again in computer science. So I have been quite loyal to computer science field, even though कि मेरा जो last experience है, that is in the data science field. और अब मेरा जो डिपार्टमेंट जिसको मैंने ज्वाइन किया है वो भी डेटा साइंस का ही है. So as the अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, so from 2019 after graduation I worked 3 years in the US for a market research company. इसका नाम Information Resource Inc. था. Nowadays it's called Circana. So 3 years मैंने मैसेच्यूसेट्स में रह के उनके साथ काम किया था और यहाँ पे वापस आके 1 year I worked for them as well. So I continued working with them till June 2023 this year. And apart from that, for 2013 to 2019, I was the research assistant, and for the last year, I was the teaching assistant at my university, the Worcester Polytechnic Institute as well. And before that, after my master's, I was a lecturer, which I think I did for 1.5 years. So these are just the research experiences and research publications. In case if anyone is interested, they can always go to my Google Scholar page. And in terms of broad, high-level fields that I'm interested in, that's data science, data mining, machine learning, data visualizations. My PhD, most of the PhD work revolved around finding similarities in the time series data. That was a quite generic field. So that is basically my main research area. In terms of personal details, I have 2 kids. So my kids were 5 and 8 when we moved from here to the US. At that time, my daughter was quite good in English, but मेरे बेटे को 3 नहीं आती. So he started his kindergarten over there. I remember going from here to there. It was quite initially मैं था कि बहुत मुश्किल होगा. Process would be quite difficult. Adjusting their schooling and everything. जिस दिन हम लोगों ने लैंड किया है, उससे अगले दिन जाके हम लोग का एडमिशन कराया. तीसरे दिन उनकी बस शुरू हो गई थी. That would pick them up and go to the school. So वो process जो है वो काफी ज़्यादा आसान था to sort of adjust there. For privacy reasons, I have not included the pictures of my kids. They are right now 16 and 19. So not kids anymore, but still for me they are kids. Then I have a cat. जिसकी picture side पे है. This picture is from the छोटी ईद की है, so that's why he's wearing that kurta. ये normal उसका attire ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. But ये especially फिर
ये और बात है कि ये कुर्ते के बाद रियलाइज ही लुक्स मोर लाइक अ डॉक्टर बिल्ला. सो बड़ी ईद पे जब हमने इसका फिर कुर्ता लिया था वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का था, नॉट द वाइट वन. So apart from that, in terms of hobbies तो नहीं कहना चाहिए, passion भी कह ले, या the things that I like. One, teaching, that is my passion. मुझे बहुत पसंद है. Even though जब मैंने undergrad किया था तो तब उसके बाद तब मैं तौबा कर ली थी कि I don't know कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं. एक तो हमारे टीचर्स भी डॉक्टर अफ्ताब, डॉक्टर वसीम इकराम, ये वाले सारे थे जिन्होंने काफ़ी टफ टाइम भी दिया था. और उसके बाद हमें जितना खैर हमने तंग किया था उनको, तो यही था कि टीचिंग प्रोफेशन में तो मैंने कभी भी नहीं आना. सो आफ्टर फिनिशिंग माय अंडरग्रेड मैंने 1.5 साल तकरीबन काम किया था. आई गॉट मैरिड. जब फिर किड्स होने वाले थे तो आई टुक अ ब्रेक. सो आई टुक अ ब्रेक फॉर 7 years आफ्टर माय अंडरग्रेड. अंडरग्रेड करने के बाद मैंने सिर्फ 1 साल काम किया है. उसके बाद 1 साल के अंदर भी 2-3 महीने आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ फ्रीलांस वर्क. सो आई completely took a break from everything and just was like a housewife at the house because my kids were young. But it was the most difficult decision I had to make in my whole life. जिससे पहले अपनी job को resign करना था because I was expecting with my first child. But it was, I think, the good decision at that time because I was able to give the complete attention and focus to my kids as well. So जब my son was about 2 years old, then I decided that no, it's very hard for me to just be a stay-at-home mom. I need to do something and utilize at least my skills. At that time, there was no, उस वक्त ये चीज़ तो थी नहीं कि आपने work from home करना है या part time करना है. तो everywhere I would go, they would ask me the technological questions, and I would say I don't know because after 7 years it's quite a long time. उसमें नई skills, नए tools, नए platforms काफ़ी आ जाते हैं. So then I figured out कि okay, why don't I apply for the master's programs? So I applied for I think 2-3 scholarships. एक मैंने जो आगा खान की होती है उसके लिए किया था, एक एमएलई के लिए किया था, और I think there was one more for the master's degree. I got shortlisted for the आगा खान one. मैं last interview में पहुंची. जो last interview था उसमें उन्होंने मुझसे ये सवाल किया what you were doing in the last 7 years. And I said I was taking care of my kids. So I did not get the scholarship. And मेरी कभी मेरे साथ यही हुआ कि I got to the last one where they conducted the test, but still I did not get that. So I said okay, fine, I can start the masters over here and then see how it goes. जी. हाँ, आपको पता है मेरी अम्मी भी ना, she's a professor and वो भी academics में होती है बहुत ज़्यादा. And when my older brothers were born, उनके साथ भी एक similar dilemma था कि मैं छोड़ूं or should I focus on my kids, और वो भी medical field में, तो it's very hard. तो she decided not to, even though I feel like we turned out fine. उनको अभी तक इतना गिल्ट होता है कि काश में दे देती. तो it's a really good decision कि family over everything else. Even though उसका फील नहीं होता, बाद में जाके आपको बिल्कुल ऐसा ही है. There are some of my कहने कि मेरे क्लास फेलोज थे जो कि they did not leave or take a gap. So they had the kids, उन्होंने साथ भी रखा. But for me, my family is my first priority. So I felt that was my decision. Like I said, that was the hardest decision I ever had to make. और उसकी वजह से काफी टाइम जो है I was quite depressed तो नहीं कहना चाहिए, but I was quite sad as well because this working in this field that had become my passion. So I did not want to take a step back, but I had to because of my family. And even today, I do not regret that. At that time and even right now, that in my view, that was a very good decision that I had to take. But it added to the struggles that later I faced. But again, कि मेरा यही मानना है कि आपको हर जर्नी कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है. So maybe at that time, if I had went for my P.HD, maybe जो मेरे kids के experiences हैं वो फिर ना हो पाते जो कि अभी हुए. So I tried to extract different positive things out of each hardships that I had to face, and I think that's the one thing that everyone should adopt in their life as well. So, okay, where was I? हाँ, तो that 7-year gap है. जब मुझे मास्टर्स का था मैंने कहा था ओके ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ मास्टर्स यहाँ पास में ही. मैंने अप्लाई किया और टेस्ट दिया. टेस्ट देने से पहले I was so hesitant क्योंकि 7 years में
you do self doubt. आप self doubting बहुत start कर देते हैं. आप कहते हैं कि 7 years काफी लंबा gap है. चीजें भी आपको याद नहीं है. How are you going to manage considering that you're living in a joint family system? You have 2 kids who are still young. आपकी family की responsibilities भी हैं. क्योंकि joint family में रहते हैं तो उसकी अपनी काफी responsibilities हैं. But I had that in me कि नहीं, I need to do this. और फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि okay, my kids are young. अगर मैं किसी कोई कोर्स में फेल भी हो जाती हूँ तो वो कोर्स आके मुझे कहेंगे कि हाँ मैम आप तो फेल हो गई इस कोर्स में. सो आई थॉट कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो मास्टर्स जब मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, 2003 से लेके 2010 अगेन कीप दैट इन माइंड कि मैंने बीच में कोई अलग से कोर्स नहीं लिया, कुछ नहीं किया. सो जब यहाँ यहाँ पे ये कैंपस, इस वाले कैंपस आई हैड द प्रिविलेज ऑफ स्टडिंग इन ऑल द 3 कैंपसेस. जब बैचलर स्टार्ट किया था उसको G64 कवर्ड मार्केट के साथ छोटे से घर में कैंपस था. वहां से हम लोग मूव हुए थे जो कि आपका हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग है. तो हम लंबी सी हम उसको बिल्डिंग कहते थे. और वहां पे बड़ा एक चार्म होता था कि अच्छा टीचर से बच के किसी तरह लिफ्ट यूज करनी है और ऊपर जाना है क्योंकि वो हम स्टूडेंट्स के लिए मना थी. तो आपने 4th फ्लोर पे हमेशा स्टेयर्स ही यूज करनी. और उसके बाद जब मैंने मास्टर्स किया आई डिड दिस इन दिस कैंपस. तो जब मैंने फिर मास्टर स्टार्ट किया इन 2010 तो मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा जो था मुझे था कि नो आई हैव टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई कैन डू दिस rather than proving to anyone else कि no you still have that in you, maybe आप कर सकती हैं. तो वो जो एक चीज थी कि मोटिवेशन वाली कह लें कि इग्नाइट चीज क्या की थी कि वो था कि मैंने खुद को प्रूव करना है कि नो आई कैन डू दिस. And no doubt that I spent so much time and I worked really hard in my masters. So in all the semester, in all the courses, I got A+. I got the gold medal in masters as well. With the kids, with the family and everything. And in my graduation, my kids were with me as well. I still have a picture where my son is wearing that gold medal and my daughter is holding that degree. But that was one achievement that really pushed me to go forward. So after that, फिर मैंने PhD के बाद में फिर अप्लाई किया. तो PhD के लिए मैंने सिर्फ Fulbright में अप्लाई किया और I got that as well. So in terms of hobbies, I love to travel. मैं जब US गई थी Fulbright पे, एक गोल ये लेके गई थी कि in the US I have to travel a lot. और मेरा गोल ये था कि I need to visit 30+ states as well, which I did. उसके अलावा I got to visit many countries as well. Some for the conferences, some to present the papers, and some for my personal experiences as well because I love to travel. So these are some of the pictures. This is from the Italy one. I really love to do these kind of things as well. So this is whitewater rafting in Turkey. And the last one is the Lake Sepulveda, if you haven't recognized that yet. So these are the achievements. I got the Fulbright scholarship 2013 to 2018 तक. After that, I have been a Fulbright applications reviewer as well. So in case at some point, if you do decide that you want to apply for Fulbright scholarship for your master's program, you can always come to me and I can share some of the tips with you as well because I have been reviewing applications for the last 2 years. This year, I was also one of the panel members conducting the interviews as well, so I really know the inside details of that as well. Then I also received a couple of rewards when I was working as a data scientist at the company. The World Fellowship Award that I received in 2013 from the Delta Kappa Gamma Society. The Grace Hopper Research Innovation Awards, these are all on the Delta Kappa. Like I said, that on the website or somewhere, if I show this slide, nobody would know how I got there. Okay, so that journey I really wanted to share in this session, so that one, you should never give up on dreams. बीच में आपके कुछ ना कुछ hurdles जरूर आ सकते हैं, कि कुछ एक तरह से hiccups आ सकती हैं. That can stop you momentarily. But if you have the passion, if you have that drive to know you want to achieve something, तो कहते हैं ना कि अगर तो it's simply as saying कि that is still one. This is not one. Even if you take very, very small steps towards your goal, eventually you will be able to achieve it, rather than just staying at one place. So that is something that somebody told me and really stuck to me. Just when I PhD करी थी, तो I had that. A PhD is not an easy thing. It's something that requires consistency from the candidate, patience, as well as के
क्योंकि वहाँ पे जब आप इतना टाइम काम करें किसी एक रिसर्च पेपर पे, आप सबमिट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिजेक्शन ही आते हैं। तो उन रिजेक्शंस को अगर तो आप ये सोचे कि नो दिस इज एंड ऑफ इट, यू लीव, बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं। बट इफ यू थिंक नो दीज रिजेक्शंस आर फॉर यू टू लर्न समथिंग आउट ऑफ देम एंड कीप ऑन मूविंग, इवेंचुअली यू डू गेट दैट। मैंने अपनी विंडो पे एक चीज लिख के लगाई थी, द बिगिनिंग्स आर ऑलवेज द हार्डेस्ट, व्हिच इज राइट इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। कोई भी चीज आप नहीं स्टार्ट करना चाहें, बिगिनिंग्स हमेशा बहुत मुश्किल होती है, और उससे पहले जो सबसे चीज मुश्किल होती है उस चीज का इरादा करना होता है। आपने एक दफा सोच दिया कि आपने ये काम करना है, तो फिर आपको चीजें रोकेंगी नहीं, लेकिन वो इरादा करना ही काफी मुश्किल हो जाता है। सो हाउ आई लैंडेड इन द CS टिल FSC थोड़ा सा पहले, अगर मुझसे कोई पूछता था कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, मेरे दो जवाब होते थे। आई वांट टू बी अ पायलट। एक रीजन उसकी ये भी थी बिकॉज माय फादर वाज इन एयर फोर्स। वी केप्ट ऑन ट्रैवलिंग आफ्टर एवरी 2-3 इयर्स। हर 2 साल बाद हमें कुछ खुद होना शुरू हो जाती थी कि अब तो बस्ता बनना है और नहीं चला जाना। इट वाज हार्ड एज वेल, बट एक जो स्किल उसने सिखा दी वो अडैप्टेबिलिटी थी कि किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाके आप कैसे अडैप्ट कर सकते हैं। सो इन द आफ्टर द मैट्रिक आई डोंट नो समथिंग चेंज। एक जो चीज मुझे बहुत जो पसंद थी, ऑल्दो बायोलॉजी मेरे अच्छे बड़े मार्क्स आए थे, बट आई लव्ड मैथ। मुझे मैथ बहुत पसंद था। मुझे इतना पसंद था कि इवन टीचर ने करा भी दिया तो मैं उस घर में आके इतना करती थी कि एक तरह से जब एग्जाम में क्वेश्चन आए थे तो मुझे सबके आंसर्स याद थे। मुझे पहले से पता था कि इस सवाल का ये जवाब होना चाहिए। और मेरे आई थिंक मैट्रिक में आई गॉट 97, और मुझे बार बार होता रहा कि वो 3 नंबर मेरे उसने काटे तो कहाँ काटे, इतना मुझे मैथ पसंद। तो FSC में जब I decided कि no I want to opt towards math instead of biology, many people were shocked as well. उनको था कि मैं तो हमेशा से कहती आई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे पायलट बनना है। पायलट तो बन नहीं सकते थे क्योंकि उसमें फीमेल्स इन द पायलट वहाँ पे अलाउ थी नहीं। So then I decided कि no मुझे फिर मैथ ही रखना है। So मेरे जो बड़ा माशाल्लाह 4 बहनें 1 भाई है, आई एम द सेकंड लास्ट वन। तो जिस बारी आई कि अच्छा आप चूज क्या करना है, तो my brother being an engineer, he said कुछ भी हो जाए इंजीनियर नहीं बनना। मेरी वाली जो थी she is a doctor, so वो कहती थी कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर नहीं बनना। अच्छा डॉक्टर भी नहीं बनना, इंजीनियर भी नहीं बनना, फिर क्या बनना है? तो then my father suggested कि अच्छा why don't you try the computer science? At that time it was quite new, और एक चीज जो मुझे फिर बाद में क्लिक हुई कि उन दिनों IBM के कंप्यूटर्स बहुत नए आए थे, तो गेम खेलने के अलावा एक जो चीज मैं बहुत उसमें करती थी वो कुछ कमांड्स के थ्रू आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करते थे। एट दैट टाइम आपको नहीं रियलाइज होता कि दैट इटसेल्फ वाज अ प्रोग्राम एज वेल, कि वो आपने कुछ शेप्स को कमांड के थ्रू करके डिफरेंट शेप्स बनाई, उनको मूव किया। तो आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट एज वेल। सो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक कोडिंग एक्सपीरियंस। जैसे मैंने स्टार्ट किया फास्ट में, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोडिंग करते कैसे। पहले सेमेस्टर में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन एक तरह से शौक उस तरह से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। प्लस आई हैड अमेजिंग टीचर्स। सो वो जो 4 साल थे, ऑल्दो दे वर क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत रगड़ा था। पास में ये सोचते थे कि जिंदगी खत्म बस हो गई है। पास में आके स्पेशली मुझसे ज्यादा मेरी अम्मी बहुत तंग थी, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि बाद में तुम जो कंप्यूटर को कहते हो कि वो तुम्हें रोटी बना के दे दिया करेगा, व्हाट आर यू गोना डू आफ्टर योर मैरिड लाइफ, कंप्यूटर से कहोगी ये कर दिया करेगा, जो कि अब सही भी है। वी हैव रोटी मैटिक एंड वी हैव अदर थिंग्स एज वेल, बट एट दैट टाइम दे डिड नॉट रियलाइज कि ऐसी चीजें भी आनी है। सो वो 4 years I would still say कि they were like the best years of my life. पढ़ाई के साथ साथ I got involved in all different things. कोई ट्रिप मिस नहीं करना, सब ट्रिप्स पे जाना है। फाइनल ट्रिप हमारा जो है वो नॉर्दर्न एरियाज गया था। That was a quite amazing experience as well. उसके अलावा जो छोटे छोटे ट्रिप्स हैं, हर हमने हर टाइम के बाद जो सॉफ्टेक होता था उसमें भी लाहौर तो मिराज में जाना था, और वो इसलिए जाना था कि वहाँ जाके हम डिफरेंट खाने पीने एंजॉय कर सकें। थोड़ा बहुत जाते थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देख लेते थे। एक वो टेंडेंस लग जाती थी कि हमने सॉफ्टवेयर देख लिया, अब चलो जी कभी हम लिबर्टी जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं। दैट 4 years वो बहुत लाइक आई सेड दे वर रियली अमेजिंग। सो स्टार्ट G64 से किया, एंड हमने हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में किया। मेरी चीज मैंने खैर पहले बता दी थी कि इन 2004 I got married, I took a 7-year gap, then I started my master's भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे इनका था कि
एक एल्गोरिथम्स का कोर्स, एक तो आपका एडवांस एल्गोरिथम्स का कोर्स होता है, उसके अलावा एक और कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि अगर कुछ पास से बाहर के लोग हैं तो वो पहले वो कोर्स करें बिफोर स्टडिंग दैट एडवांस एल्गोरिथम्स कोर्स। और वो रीजन थी कि बाहर से आने वाले जो है उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज उनकी डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको कोर्स लेना लाजमी था। मेरे लिए लाजमी था नहीं, बट आई स्टिल टुक दैट कोर्स बिकॉज मुझे वो सेल्फ डाउट का था कि मैंने इतने अरसा जो है वो छोड़े रखा है पढ़ाई को, तो आई नीड टू टेक दैट। इवेंचुअली बाद में यही लगा कि वो इतना से वेस्ट ऑफ टाइम था, बट स्टिल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल। 2012 में I finished my masters in 1.5 years। फिर मैंने 1 year जब इधर पढ़ाया था, I applied for the Fulbright scholarship। और मुझे याद है कि जब मैं उसका इंटरव्यू देने गई थी, apart from asking a couple of other questions, they asked me about the scarf as well। और उनका यही सवाल था कि अगर तो वहाँ पे आपको इसकी वजह से मुश्किल होती है तो फिर मतलब आप इसको उतारेंगी कि नहीं। तो that really tipped me off। I don't know मैं उस दिन क्या खा के गई थी। जो इंटरव्यू पहले वाले थे मेरी तरफ से मैंने उनको सुनाई भी, मैंने कहा कि आप लोग नन की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं, व्हाई कांट यू रिस्पेक्ट अ पर्सन जो कि अपनी मर्जी से जो है ये सब कुछ कर रहा है। एंड आई एम नॉट एक्सट्रीमिस्ट, अगर मैं नहीं ले सकूंगी तो मैं इसको ताकि मैं क्या ले लूँगी। तो आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन एल्स टू डू दैट, व्हाटएवर आई एम डूइंग विद माई सेल्फ इट शुड बी माई कंसर्न। तो वो देख कर करके मैं वापस तो आ गई। वो मेरी फ्रेंड ने कहा भी कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उनको सुनाने की। तो मुझे हुआ भी कि मे बी आई शुड हैव बीन मोर पॉलिटिकल या थोड़ा जाने देती, लेकिन ये था कि when I got the call or I got the basically that news, I said okay, they are much more understanding। maybe उन्होंने इतना माइंड नहीं किया होगा या जितना मैं शायद मेरे अल्फाज थे, लेकिन still I got the scholarship। न्यूज़ ब्रेक करना घर में तो फिर भी काफ़ी इजी था, बट the more resistance I received was from my mother-in-law, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि मैं उनके बेटे को भगा के यहाँ से लेके जा रही हूँ। जो कि फैमिली में काफ़ी बातें भी हुई कि ये बेटे को भगा के ले तो गई है, वो बेचारा वहाँ पे जाके सिर्फ बर्तन धोता रहता है। तो सारी बातें फिर आपको सुननी पड़ती हैं, लेकिन then you see कि this is something that you want to achieve that as well। तो कोई भी कुछ इर्द-गिर्द आपके कह भी रहा है तो आप सिंपल उसको इग्नोर करें। तो ये भी मुझे कहा गया था कि भाई आप आईवी लीग में तो सिलेक्शन आपकी हुई नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है जाने की। तो वो फिर सारी चीजें आपको फिर आंसर खुद देना पड़ता है कि भाई अगर आईवी लीग नहीं भी है तो एक तो फॉर्मेट आप आईवी लीग में भेजता भी नहीं। दूसरा यूएस का एक्सपीरियंस लेना, दैट इज अ क्वाइट ह्यूज अचीवमेंट इन द सेंस कि इन माय होल फैमिली आई एम द फर्स्ट वन हु हैज द पीएचडी स्टिल टिल नाउ। देयर इज नो अदर पीएचडी इवन राइट नाउ। तो उसमें अगर मैं कहूँ कि किसका हाथ है, तो again my kids, they have been very supportive, they have been quite understanding as well। बीच में कुछ टाइम उनको छोड़ के different conferences पे भी गई। My husband's support, that has been phenomenal। My father-in-law, he was the one who signed the bond। जब वापस आने का टाइम था तो काफी हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं वापस आते तो पकड़ेंगे धोनी को। लेकिन मसला ये था कि फिर मेरे हस्बैंड इस चीज से मान नहीं रहे थे। We had to still come back after that। Then my parents as well। So my parents, I think parents का जो आपके साथ रिश्ता है ना, वो मैंने जो चीज़ नोट किया है कि मुझे बहुत होता था कि especially my mother, she would get worried a lot। मेरे एग्जाम्स है, मुझसे ज़्यादा परेशानी मेरी अम्मी को हो रही है कि तुम्हारे एग्जाम्स हैं, अब तुम्हारे एग्जाम्स हो गए हैं, अब पीएचडी खत्म होने वाली है, फिर क्या करोगी, फिर तुम्हें वापस आना है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं रह सकती, फुलब्राइट की स्कॉलरशिप तुमने ली क्यों, तुम्हें जब पता था कि 2 साल बाद 2 साल के लिए तुम्हें वापस आना है या खत्म होने के बाद वापस आना है, फिर क्यों नहीं, फायदा क्या इसका, क्या होगा, अब जॉब कैसे मिलेगी। तो मैं उनको हमेशा कहती कि मतलब आई एम एन एडल्ट, व्हाई यू नीड टू वरी अबाउट मी। अब मैं एज अ मदर आई वरी फॉर माय किड्स एज वेल, उनकी छोटी चीजों को। दिस इज समथिंग दैट कंटिन्यूस विद यू आई थिंक ऑल योर लाइफ। यहाँ का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, यूएस का बहुत डिफरेंट है। दैट्स समथिंग आई लाइक ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे जो आपके रिश्तों का एक तरह से बॉन्ड है ना, वो थ्रू आउट आपकी लाइफ चलता है। हाँ, वहाँ आपको स्टॉप तो जरूर करते हैं, लेकिन दैट जो अफेक्शन का जो बॉन्ड है वो बहुत आपको डिफरेंट नजर आएगा। वहाँ यूएस में इट फील्स मोर आर्टिफिशियल, ओवर हियर इट डज नॉट।
तो एक जो क्वेश्चन मुझे मिला था कि आपको क्या डिफरेंस लगता है, दैट डिफरेंस बिल्कुल लगता है। मैं यहाँ पे दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ, दैट इज डिफरेंट। मैं वहाँ पे अगर वहाँ के बनाए हुए दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगी तो डिफरेंट है। यहाँ पे हम आपस में लड़ेंगे कि कौन पे करेगा, वहाँ पे इट्स लाइक डक सिस्टम, एवरीबडी पेज फॉर देयर ओन। तो वो एक आपका जो कनेक्शन है वो तब स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो नहीं पाता, वो चीज़ है। सो आई थिंक yeah, let's stop here. In case, like I said, कोई question वैसे है with respect to academic and everything, I would love to answer that. Or let's have the, like I said, any panel discussion that you want to do with respect to it. आप पास्ट ग्रेजुएट हैं, तो फिर जब आप गई, लाइक आप स्टूडेंट रही और जब आप वापस आई यहाँ पर, तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज एंड कॉन्स, एक तो है जब मैं गई थी, एक तो ये रीजन कि मैं जब वापस आई तो मुझे ये भी लोग पूछते हैं कि मैं फास्ट ही वापस क्यों आई हूँ। There are many other universities here. I did not apply to any other university. FAS always felt to me like home. मैंने बैचलर्स यहाँ से किया, मास्टर्स यहाँ किया। मैं जब PhD करने गई थी, they gave me the study leave. They usually don't give that long study leave. I got the study leave for that long. ये वो बात है कि 5 साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई बहुत टाइम हो गया, आप वापस तो आ नहीं रही हैं, तो आप अब रिजाइन कर दो। तब जाके मैंने रिजाइन उन्होंने मुझसे लिया था, वरना तो शायद अगर उस वक्त आने का होता तभी ना लेते। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कहूँ कि PhD में जाने से पहले जब मैंने 1.5 साल पढ़ाया और वापस आके एक जो चीज़ बहुत तंग करती है दैट इज द नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। अगर तो पहले तो मैं कंपैरिजन करूँ, क्योंकि मैंने US में भी पढ़ाया, मैंने यहाँ भी पढ़ाया। वहाँ की मेरी क्लास होती थी 70 स्टूडेंट्स की, लेकिन फील नहीं होती थी कि 70 स्टूडेंट्स हैं, और ना ही आप इतना थकते हो। सो एक दफा भी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने क्लास में स्टूडेंट्स को कहा कि यू नीड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू द टीचर, नॉट इवन वंस। तो वहाँ और यहाँ का कंपैरिजन तो खैर उसका बनता नहीं, लेकिन अगर यहाँ की भी बात करें तो ओवर द ईयर्स एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व मैंने की है, जो कि नेगेटिव भी है, दैट इज द व्हाट आई एम सीइंग इज कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट अब नहीं पुट करते। अब जैसे मुझे याद है कि एक कोर्स मैंने पढ़ाया था, उसकी मैंने बुक भी अपलोड की हुई है, एंड आई थिंक द फर्स्ट क्विज आई गेव फ्रॉम द बुक, एंड देन आई आस्क्ड स्टूडेंट्स हाउ मेनी, मैंने अनाउंस भी किया था कि बुक डू कंसल्ट करें, एंड आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ मेनी ऑफ यू डिड कंसल्ट द बुक, नॉट इवन वन स्टूडेंट डिड दैट। तो स्टूडेंट्स आजकल इट्स नॉट जस्ट फॉर द फास्ट, आई थिंक इट्स लाइक अ जनरेशन थिंग, दे ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स। वो कहते हैं कि अच्छा सिर्फ ये स्लाइड्स है, ये इनको पढ़ लिया तो काम चला लिया। एक और चीज़ जो काफी थोड़ा मिसिंग लगती है, दैट इज द पैशन बिहाइंड दैट, कि भाई आप अगर यहाँ पढ़ भी रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे? इज इट बिकॉज दैट योर पेरेंट्स वांटेड यू टू, या फिर आपको है कि जी आप तो डेटा साइंस बहुत इन फील्ड है, कंप्यूटर साइंस भी इन फील्ड है, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, तो वो तो आपको चैट जीपीटी से रिप्लेस कर ही देना, ठीक है ना? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर तो वो आप उस चीज में पैशन लेके आ जाओ, फिर आपको कोई और टूल उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप में जब पैशन होगा तो आप सिर्फ उस लेक्चर से आगे जाके सीखेंगे। आप ये देखेंगे कि भाई मुझे ये चीज सीखनी है, तो देयर आर मेनी अदर रिसोर्सेज अवेलेबल, आपको चीजें अवेलेबल है, you have the internet and everything. At our times it was just the libraries of the books, even I hated the library, I don't know why, somehow it is right from the school, मुझे somehow library में जाके कुछ होना शुरू हो जाता था, but I would ask someone else to go and get the books and everything. But right now जितनी information available है उस हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए कि आप डिफरेंट चीज़ें कंसल्ट करें। But I think one thing that is quite bad is कि आप फिर distractions भी ज़्यादा है, सोशल मीडिया की है, बाकी चीज़ें हैं, तो ऑल्दो की टाइम तो वही है, लेकिन चूंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, आपको बस कम टाइम मिलता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है, ग्रेड्स अच्छे लेके आने हैं, पेरेंट्स प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो उस केस में फिर स्टूडेंट्स दे ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स, और उसमें फिर उन शॉर्ट तक ही महदूद रह जाते हैं, जो पीछे लर्निंग वाली चीज़ थी वो फिर पीछे कहीं दब के रह गई। तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू बिल्ड अप एंड वी नीड टू ब्रिंग दैट आउट। आपका अगर पैशन किसी एक चीज़ भी है ना, अगर लेट्स से कि मेरे पैशन में म्यूजिक है, मुझे माँ बाप ने कह दिया कि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाऊँ, अब आप देखिए कि अब कंप्यूटर साइंस और ये टेक्निक्स को यूज करते हुए म्यूजिक ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। आई कैन कंबाइन दीज टू, और मुझे फिर वो जो शौक होगा सीखने का,
then I will learn the techniques, then I will learn the tools as well, even कि मुझे वो hard भी लगे, just because कि मेरा interest उसमें है. तो अब तो आप बहुत सी चीज़ों को combine करके अपने passion के हिसाब से उसको लेके आ सकते हैं. So that is something that I found changed over the years. And I think it's not just in the university settings, overall generation में भी नजर आ रहा है, but it's something that we need to sort of change. We need to ignite that passion in our surroundings. आप में अगर कर रहे हैं तो अपने साथ वाले को encourage करें to pursue whatever they are passionate about as well. तो वो जो community building होती है ना कि not everybody is for themselves. आपने अगर क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ competition बन के रहेगी कि मैंने अगर अच्छा बहुत किया है तो इसको नहीं करने देना. हालांकि आप दोनों भी तो अच्छा करके ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. तो वो जो चीज है दैट इज अगेन मिसिंग, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, बट विद कलेक्टिव एफर्ट दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट. मेरे हिसाब से होनी चाहिए. जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैम स्कॉलरशिप के बाद फुलब्राइट के बाद स्पेसिफिकली ये मस्ट होता है रिटर्न वापस आना? जी, फुलब्राइट में लाजमी होता है क्योंकि फुलब्राइट में देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स एज वेल, जैसे एचईसी की भी आती है, कॉमनवेल्थ की अभी आती हैं. उनमें कुछ में तो ऑल्दो लिखा तो होता है कि आपने वापस आना है, लेकिन इतना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता. इन फुलब्राइट के केस में ऐसा होता है क्योंकि फुलब्राइट के केस में इनका जो एक तरह से रिकॉर्ड है वो फिर एम्बेसी के पास भी सॉर्ट ऑफ होता है. तो अगर आप अप्लाई करें, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी वर्क वीजा आफ्टर फुलब्राइट अगर आप अपनी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते. Once you fulfill that residency requirement, तब आप बेशक वर्क वीजा लें, इमिग्रेशन अप्लाई करें, that you can do. तो वापस आके फिर वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं? आप 2 साल गुजारेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं. तो 2 साल पाकिस्तान में 2 साल आपने पाकिस्तान गुजारने, not continuous, aggregated time आपका 2 साल का होना चाहिए. 2 साल के बाद आप किसी भी आप इमिग्रेशन स्टेटस अपना वहाँ के लिए चेंज कर सकते हैं, but not before fulfilling that 2 years thing. लेकिन पढ़ने की कंपल्शन नहीं है. आप अभी वापस आए, अभी आपके 2 साल पूरे नहीं हुए, आप एक और स्टडी वीजा लेके चले जाएं, दैट विल बी. और मैम इसमें इस तरह होता है कि आप इधर से बैठ के अगर फॉर एग्जांपल हमारी जॉब है वहाँ पे रिमोट मिल गई है हमें उसके साथ, तो हम ऐसे वर्क वीजा में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली गुजारने हैं 2 साल. स्ट्रिक्टली गुजारने 2 साल. उसमें बहुत ही कम वेवर्स की ऑप्शन होती है, लेकिन वो एक ऐसी उसमें आती है, लेट्स से कि एक उसमें ये आती है कि अगर तो एक्सट्रीम हार्डशिप वाली चीज़ है कि अगर तो जान आपकी बहुत खतरे में है, जो कि हमने वैसे वैल्यू वैसे की थी, तो वो ये था कि फिर मैं बताऊँ कि मेरी जान बहुत खतरे में है, मैं अगर पाकिस्तान जाती हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो फलाना कोई अलग जो ग्रुप है वो शूट कर सकता है मुझे. तो खैर मजाक अपार्ट, और एक वो ऑप्शन होती है एक्सट्रीम हार्डशिप्स की, जो कि ज़्यादातर लोगों पे अप्लाई नहीं होती, कंसिडर कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज नॉट दैट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एज कंपेयर्ड टू सम पीपल दैट गॉट फ्रॉम अफगानिस्तान. कि वहाँ पे इट्स कंप्लीटली डिफरेंट वन. तो एक वो बेसिकली कैटेगरी आती है, एक और कैटेगरी आती है कि अगर तो लेट्स से यू हैव अ फैमिली ओवर देयर और उनके लिए हार्डशिप्स अगर तो यहाँ पे आने बनती है तो उसके बेसिस पे आप कर सकें, लेकिन दैट इज क्वाइट रेयर एज वेल, वो भी आपको नहीं मिलता है. तो वो फिर आप जैसा मैंने भी वापस आके साल तकरीबन काम आई स्टिल वर्क, बट दैट आई डिड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, नॉट ऑन देयर वर्क वीजा एंड नॉट ऑन द यूएस पेरोल. यूएस पेरोल फिर आप नहीं कर सकते. हाँ, आप कंसल्टेंट के तौर पे काम कर लें, आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे कर लें, जैसे आप आजकल फ्रीलांसिंग होती है, रिमोट होती है, वो आप कर लें. कंपनीज अगर इंटरेस्टेड होती हैं तो आपका H1 अप्लाई कर सकती हैं, बट दैट अगेन द H1 अगर आपका हो भी जाता है लॉटरी में ना, you can only get that if you spend that 2 years here. मैम ये फुलब्राइट के बाद ये कुछ आसान हो जाता है प्रोसेस वर्क वीजा या इमिग्रेशन का, या उसी तरह ही होता है बाकी उनसे कंपैरेटिव? It depends कि आपकी इवन इमिग्रेशन में भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं. So I will give a few examples. Let's say कि मैंने चूंकि PhD की हुई है, मेरी publications का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, I have a couple of achievements as well. I do qualify for the EB2 visa. वो भी इमिग्रेंट होता है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं. दे आर फॉर एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स. वो आपको अगर मिल जाता है तो वो अगेन के उसमें फिर इमिग्रेशन बहुत ईजी हो जाती है. राइट आफ्टर मास्टर्स के बाद उसमें थोड़ी सी लिमिटेड ऑप्शंस पे आपके पास आ जाती है, क्योंकि उसमें आपने या तो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी फॉर द H1, या फिर कंपनी के ही थ्रू आप EB3 करते हैं, दैट इज अगेन इमिग्रेंट वीजा, लेकिन वो
फायदा तो आपको देता है कि आपने फुल ब्राइट पे से काम किया, बिकॉज फुल ब्राइट आपको मिला ही तब है क्योंकि आप केपेबल है ना, आपको बाकी सारी चीजें आपकी देके दी जाती है. तो इट डज ईजीज इट आउट, बट स्टिल दे आर लिमिटेड थिंग्स, क्योंकि कंपटीशन है, ऑफ कोर्स लिमिटेड वीजास होते हैं, वो सारी चीज़ आपको मिलती है, बट ऑप्शंस लेकर आते हैं. उससे ज़्यादा चीज़ जो काफ़ी लोग फिर प्रेफर करते हैं, दैट इज मूविंग टू द मिडिल ईस्ट, क्योंकि हैविंग अ डिग्री फ्रॉम द यूएस, उसमें फिर आपको मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है. तो ये इवन मेरे कुछ सीनियर्स मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स रहे थे या मेरे बैच के काफ़ी जो गए थे, मेजॉरिटी ऑफ देम डिड मूव टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट साइड. वहाँ पे फिर उन्होंने फिर वहाँ पे जॉब्स की थी एंड दे गॉट गुड पेइंग जॉब्स एज वेल. मैम के टाइम पर जीआरई वगैरह होता था? जीआरई इज कंपल्सरी, जीआरई आपको देना होता है, और टोफल भी आपको लाजमी देना होता है फॉर द फुल ब्राइट. और टोफल का फिर ये होता है कि उनका एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है, अगर उस थ्रेशोल्ड से आपका नीचे आएगा दे गिव यू द वाउचर टू टेक इट अगेन. सो आई थिंक 100 स्कोर है, कुछ ऐसा है दैट यू नीड टू टेक. तो आइल्स के आपको फॉर द फुल ब्राइट में नहीं होगी, अगर आप कनाडा साइड पर जा रहे हैं तो फिर आपको आइल्स. टोफल मतलब मस्ट है. टोफल भी फुल ब्राइट अप्लाई करने के लिए अगर आपने टोफल नहीं भी दिया हुआ तो स्टिल यू कैन अप्लाई, लेकिन अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे दे विल गिव यू द वाउचर टू टेक द टोफल एग्जाम दैट यू नीड टू टेक. सो आपको फुल ब्राइट मिलेगी तब जब आपने ये दोनों दिए. वैसे if the end goal is fan, तो फिर आप that Is the end goal is what? fan basically Facebook, Amazon. Okay. What would you recommend after graduation? मतलब आप किस industry में ट्रांसफर करना या going straight to the master's job and then going to education? I did both, क्योंकि मैं जब PhD मैंने खत्म की थी तो इवन तो कि मुझे टीचिंग का शौक है तो सही, I wanted to gain the industry experience. So I joined the industry after that. मैंने 4 साल काम किया, मैं वापस यहाँ पे आई. अब यहाँ पे इशू ये है कि being a PhD, there are not many industry options available to you. I'll be honest with that. अगर आप as compared to here, आप इंडिया चले जाएं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अपने ऑफिसेज हैं, वहाँ पे वो PhDs लेते भी हैं. They are well paying as well. यहाँ पे अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो यहाँ पे ज़्यादातर फिर जो रह जाता है that is academia option. और अगर तो आपका गोल ये है कि you want to stay in the academia, again क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी personal preferences क्या है, interest क्या है. You love teaching, you love research, then I would highly encourage you to do the PhD. क्योंकि academia में with the rules जो कि change हो चुके हुए हैं, it's necessary now to do the PhD. और अगर आप बाहर से करके आते हो, not necessarily US, लेकिन कहीं भी बाहर से, आप पे स्केल यहाँ पे देखेंगे there is a difference. किसी ने यहाँ से की हुई है और किसी ने बाहर से की हुई है. दोनों के पे स्केल में डिफरेंस आता है, ठीक है. अप्रोच में तो डिफरेंस आता ही आता है, लेकिन पे स्केल में भी आता है. लेकिन अगर तो आप वो रिसर्च और डेवलपमेंट या एकेडेमिया का नहीं है, यू डोंट नीड टू डू द PhD. और लेट्स से कि आप यूएस में जाते हैं, अगर तो आपका गोल ये है कि आपने जॉब करनी है इन द Amazon, इन द Facebook एंड एवरीथिंग, आई हाईली एनकरेज डू द मास्टर्स एज वेल. एक तो ये कि यहाँ से खाली अंडरग्रेड पे अगर तो आपने ट्रांसफर करवाया, अंडरग्रेड वहाँ पे किया, तो यू डू गेट द लाइक द इनिशियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशंस एज वेल. लेकिन अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं बाहर से, लेट्स से यूएस से, एक तो आपकी अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती हैं, प्लस आपकी जो ग्रोथ ऑप्शंस हैं वो भी आपको ज़्यादा मिलती है. तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी, डू द बैचलर्स. अगर यहाँ से भी कर रहे हैं, सबसे आगे ईजियर राउट स्कॉलरशिप्स का बिल्कुल है, लेकिन गो फॉर द मास्टर्स एज वेल. मास्टर्स में भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी लोग जो है वो स्कॉलरशिप ले पाते हैं, इवन इफ यू अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी. कुछ 60% ट्यूशन आपको स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ 50% देंगे. आफ्टर 1 सेमेस्टर आपको थोड़ा काम करने की भी ऑप्शन मिलती है, बट दैट इज अ मच ईजियर राउट. मास्टर्स आप करें, देन गो टुवर्ड्स द इंडस्ट्री. एकेडेमिया में तब सिर्फ जाए जब यू रियली लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है. और एकेडेमिया में अगर आपने जाना भी है, मास्टर्स इज नेवर इनफ, इवन इन द US. देन यू नीड टू डू द PhD के बाद आप पोस्ट डॉक करते हैं कि नहीं करते. मैंने तौबा कर ली थी कि मैंने बिल्कुल नहीं करनी इसके बाद रिसर्च, तो मैंने भी पोस्ट डॉक नहीं की. अब शायद सोचूं जाने का मे बी पोस्ट डॉक के लिए, बट फिलहाल नहीं. अभी थोड़ा सा रिसर्च का काम यही कर रही हूँ. बट अगर तो आपका लेट्स से प्योर डेवलपमेंट साइड पे है, देन यू डोंट नीड टू डू द PhD. आप सिर्फ मास्टर्स तक करें एंड देन अप्लाई फॉर द गुड प्लेसेस एज वेल. अच्छा, also you keep 50-60% scholarships इनको आप leverage सकते हैं into H2B वीजा या actually stay करें. H1 में नहीं आप कर सकते. हाँ, H1 बिल्कुल करते हैं. H1 तो इट्स लाइक अ लॉटरी बेस्ड ना. तो जब आपने शुरू पार्ट का क्वेश्चन क्या था? बस क्या है कि ये 50-60% scholarship नहीं, इट डज नॉट मैटर कि आप 50% स्कॉलरशिप पे गए कि नहीं.
इट डिपेंड्स कि आपने जब लेट्स से आपने बैचलर्स कर लिया या मास्टर्स भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास ओपीटी की ऑप्शन होती है। STEM फील्ड में आप यू कैन डू द OPT training for 3 years. That means for 3 years you can work at any company. The company that you decide that you will be working at, that is very important because whether that applies for the H1B visa for you or not. It does not matter कि आपने स्कॉलरशिप पे अपना मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है या खुद से किया है, कंपनी जो आपने चूज की है वो अगर H1 अप्लाई करती होती है तो वो आपका नाम डालेगी। इट्स अ लॉटरी बेस्ड, आपकी लॉटरी निकली तो यू कैन गेट द H1B वीजा, ठीक है। वरना फिर कंपनी अगर नहीं करती होती तो इट्स ऑलवेज बेस्ट दैट व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग आस्क इफ दे डू फाइल द H1B visas or not. अगर वो नहीं फाइल करते, if you have other options, explore the other options. जी। You recommend कि मास्टर्स से पहले हम 1 या 2 साल इंडस्ट्री में काम करें और एक्सपीरियंस करें? डिपेंड करता है कहाँ पे। अगर लेट्स से यहाँ पे है then yes I do recommend that, क्योंकि फिर आप जब मास्टर्स के लिए आते हैं it does make a difference, प्लस आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है। वहाँ पे भी डिपेंड करता है। वहाँ पे इशू ये है कि क्योंकि यहाँ पे एज आप जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वहाँ पे इशू जो सबसे ज़्यादा वो वीज़ा के अराउंड आता है। आप जब बैचलर्स लेट्स से करने गए हैं तो आप F1 वीज़ा पे गए हैं, उसकी एक वैलिडिटी पीरियड है। फिर उसके बाद अगर तो आपने लेट्स से OPT की है तो OPT अगेन 3 इयर्स की है। बाकी अगर STEM फील्ड नहीं है तो सिर्फ 1 साल की है, ठीक है। उस 1 साल में आपने लेट्स से जॉब सिक्योर करनी है, उस जॉब वाले ने आपका H1 भी अप्लाई करना है। आपका H1 नहीं अप्लाई होता तो आफ्टर 1 ईयर यू आर आउट ऑफ स्टेटस, यू कैन नॉट रिमेन इन द US। मैं US की बात करूँगी क्योंकि मुझे US का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यू आर सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ स्टेटस, यू कैन नॉट रिमेन इन द US। तो उस केस में फिर आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि अगेन कि अगर तो आपको जॉब अच्छी मिल रही है और जॉब भी ऐसी है कि जो आपका H1 लेट्स से अप्लाई करेंगे, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप जॉब करें, ठीक है। जॉब के दौरान आपकी कंपनी ने H1 आपका फाइल किया, H1 लेट्स से आपका हो भी गया। कुछ कंपनीज वहाँ पे ऐसी होती हैं जो कि खुद से मास्टर्स करवाती हैं, जिसमें अच्छी कंपनीज है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके अपने तरह से स्कॉलरशिप फंड्स होते हैं विच यू कैन यूज टू परस्यू मास्टर्स लेटर। आप उनके खर्चे पे भी मास्टर्स कर सकते हो, वरना आप जॉब के साथ साथ भी मास्टर्स कर सकते हो सो दैट यू कैन प्रॉस्पर और ग्रोथ आपकी अपॉर्चुनिटी स्टिल रहे एंड यू स्टिल मेंटेनिंग दैट वीजा स्टेटस। तो उसमें फिर बेहतर होता है कि आप अगर तो आपकी कंपनी आपको ऐसी मिल गई है जो H1 नहीं अप्लाई करती, you cannot remain in status for long. Then shift, admit in master's program, get that, and फिर आप apply करें। Do you recommend masters from Europe या US? Tough question. In terms of PhD, I recommend US. In terms of masters, it's fine. यूरोप की भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ट्यूशन भी बहुत कम है, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल देखा जा सकता है। So they are very good universities in very different Europe countries as well. PhD ज़्यादा US की मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन मास्टर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो अगर तो आपके ऐसे एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि आप मेंटेन कर सकते हैं, गो टुवर्ड्स द यूरोप साइड एज वेल। लेकिन आई वुड हाईली इंकरेज के बजाय से कि यहीं से करें, अप्लाई तो करें ना, देयर इज नो हार्म इन अप्लाई। हो गया तो हो गया, गिव इट एफर्ट। वो कहते हैं कि गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड देन लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाकी मेहनत कभी ज़ाया जाती नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से आपको फिर वापस फल मिल जाता है। तो मेहनत करें, कोशिश करें, बाकी चीज़ें फिर आपको इंशाल्लाह। जैसे आपने अप्लाई किया था फुल ब्राइट के लिए, तो इसके लिए पाकिस्तानियों के लिए डिफरेंट कोटा होता है कि इतने स्पेसिफिक बंदे पाकिस्तान से सिलेक्ट होंगे, और दूसरा ये कि कितना कंपटीशन है, मतलब हम अपने आप को किस तरह से जज कर सकते हैं कि एक तो जो हर कंट्री के ना अलग अलग उनका होता है। आपका जो कंपटीशन होगा जो पाकिस्तान से अप्लाई करे उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं के साथ होता है। लेकिन उसमें भी ये है कि उनका डिफरेंट ना प्रेफरेंसेस टाइप होती है। जिस तरह अगर तो कोई माइनॉरिटी ग्रुप है तो गिव प्रेफरेंस टू दैट। सिमिलरली इनका हमेशा से रहा है कि फीमेल्स को इनकरेज किया जाए, तो फीमेल को थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन वो इतनी माइटर इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मैंने जब उनका स्क्रीनिंग फेज देखा, मैंने इंटरव्यू भी लिए, तो जितनी फीमेल्स हमारे इंटरव्यू में आई थी वो सब के सब रिजेक्ट हो गई। तो इंटरव्यू तक पहुंचने तक तो आपका प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपकी जब ग्रेड होगी, लेकिन इंटरव्यू में फिर आपकी जो पर्सनल स्किल्स है, आपकी क्या क्या प्रोफाइल है, वो ज्यादा काउंट करता है। सिर्फ ये नहीं काउंट करता कि आपका एकेडमिक्स कैसी थी, आपका 4 GPA है, 3.5 है, उसके अलावा आप क्या क्या करते रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
अगर तो let's say आप किसी क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप वॉलंटियरिंग कोई काम कर रहे हो, जैसा एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया हुआ है पैशन लर्निंग वाला, उसमें let's say that is a very good thing as well. आप अपनी कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये आपकी प्रोफाइल बनाती है. यही चीज जब आप let's say यूएस में अप्लाई करने जाएंगे मास्टर्स में, दे काउंट एज वेल. यहाँ पे बहुत छोटी छोटी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू बी द टीचिंग असिस्टेंट और टू बी अ ग्रेडर, दैट काउंट एज वेल. क्योंकि मास्टर्स में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल जहाँ पे आती है वो फंडिंग की आती है. तो अगर यूएस की अगर मैं बात करूँ, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बीइंग अ ग्रेडर, बीइंग अ टीचर असिस्टेंट अगर रहा हुआ है, यू मेंशन दैट वहाँ पे प्रोफेसर्स दे वांट टीचिंग असिस्टेंट्स. तो टीचिंग असिस्टेंट अगर आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट ही लग जाते हैं, सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपकी ट्यूशन सारी वेव ऑफ हो जाती है. यू गेट द स्टाइपेंड एज वेल, और ट्यूशन फीस आपकी नहीं होती. आपको अपनी अकोमोडेशंस की और जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो सिर्फ खुद करने पड़ते हैं, बाकी नहीं करने पड़ते. तो इसलिए फिर काफी फायदा हो जाता है. लेकिन पाकिस्तान में कितने लेते हैं ये फंडिंग पर डिपेंड करता है. हर साल इनकी फंडिंग चेंज होती है, उस हिसाब से फिर कभी ये 200 ले रहे होंगे, कभी 250 होगा, इसके अराउंड ही आ जाएगा. और ये क्या होता है कि जैसे 30 P.HD लिए हैं, बाकी उन्होंने मास्टर्स लिए हैं, लेकिन कंपटीशन इज विद इन पाकिस्तान इटसेल्फ. जी. जब यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करते हैं मास्टर्स के लिए, do they look at the GPA या किस यूनिवर्सिटी they look at both things. So they look at the complete profile. एक तो अक्सर यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि let's say 3 से ऊपर. देखिए, एक होता है कि आपको एडमिशन देना. एडमिशन तो काफी यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएगा क्योंकि they want to earn money as well. अगर तो आप खुद पे कर रहे हो तो एडमिशन तो आपको मिल जाएगा. लेकिन स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो यू नीड टू हैव अ गुड GPA. लेकिन सिर्फ गुड GPA आपको नहीं काफी, क्योंकि अब इतना कंपटीशन आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम द चाइनीज स्टूडेंट्स. वहाँ पे चाइनीज स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि बेस्ट GPA, हाईएस्ट स्कोर्स इन GRE, TOEFL, आई डोंट नो व्हाट दे डू या क्या चीज करते हैं. बट एक चीज जो मैंने नोट की थी कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल. मुझे फर्स्ट सेमेस्टर मुझे याद है, इट वाज अ डेटा माइनिंग कोर्स, और मेरे साथ एक लड़की थी, वो चाइना से थी, और हमें लेट्स से आज असाइनमेंट मिली है और उसके लिए 2 वीक्स का टाइम दिया हुआ है, वो कल पूरी करके बैठी हुई थी. दे आर सो हार्ड वर्किंग, लेकिन द थिंग दैट दे लैक इज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. बहुत लैक करते हैं वहाँ. दैट इज समथिंग दैट यू ब्रिंग टू द टेबल, कि अगर एज अ TA आप अगर TA है तो यू हैव बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एज कम्पेयर्ड टू लेट्स से चाइनीज स्टूडेंट्स. तो GPA इटसेल्फ इतना मैटर नहीं करता कि अगर आपका 3.9 है या 3.7 है. इट्स द अदर थिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन, वो बहुत मैटर करती है. आपकी लीडरशिप स्किल्स है वो बहुत मैटर करती है. अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेट्स से, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि मास्टर्स लीडिंग टू PhD होते हैं. उसमें ये अच्छी चीज हो जाती है कि अगर तो अभी आपने लेट्स से फाइनल प्रोजेक्ट्स करने हैं, आप उसमें कहीं भी थोड़ा सा रिसर्च कंपोनेंट ले आए, एक रिसर्च पेपर लिख दें, ठीक है. उससे फायदा ये होगा कि यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम्स दैट, क्या आप एक तरह से एनरोल तो मास्टर्स में, बट इट इज लीडिंग टू PhD. उसकी फंडिंग आपको मिल जाती है. देयर प्रोफेसर्स गिव द फंडिंग. मास्टर्स में आपने उनके खर्चे पे किया, PhD भी की. अगर PhD नहीं भी करनी, आपने बीच में छोड़ के आपने जॉब भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा मिल जाती हैं. दे आर कॉल्ड PhD 90 प्रोग्राम. कि पहले 30 क्रेडिट्स आपने मास्टर्स के किए और फिर आपने 60 के किए, बट यू गेट एनरोल्ड इन दैट बेसिक प्रोग्राम्स. वो चीज़ आती है. लेकिन दोनों चीज़ें मैटर करती हैं. एकेडमिक्स आई थिंक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में है कि 3 से ऊपर GPA होना चाहिए, और अगर आप अपनी स्कॉलरशिप नहीं भी लेना चाह रहे तो आई थिंक द मिनिमम इज 2.75. सो 2.75 से ऊपर है तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पे भी एडमिशन ले लेती है, बट इट विल बी ऑन योर एक्सपेंस. फुलब्राइट पे भी इफेक्ट होता है मैम? फुलब्राइट में लेकिन रिक्वायरमेंट तो नहीं, मतलब नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन फुलब्राइट मैंने कहा ना कि फुलब्राइट में आपकी ज्यादा चीज जो देखी जाती है वो दूसरी देखते हैं. एकेडमिक्स तो देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि आपकी बाकी कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसी है, आपको कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कहाँ लीडरशिप स्किल्स आप अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है. और सबसे ज्यादा चीज के हैव अ पैशन ऑफ डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान. जब इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है कि आप जब वापस आएंगे व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है. तो यहाँ पे जिन लोगों का हमने कहने के रिजेक्ट किया था, रीजन यही थी कि वो फिर स्ट्रॉन्ग पैशन शो नहीं कर पाते कि हमने पाकिस्तान आना है तो यहाँ पे आके करना क्या है, या वहाँ पे जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए थे वो यहाँ पे आके हम उनको कैसे यूज में लेके आएंगे. तो वो चीज़ आपकी जो बेसिकली ऐसे वाली चीज़ है ना, वो बहुत मैटर करती है.
क्योंकि हमारे पास जब आती है ना एप्लीकेशन फॉर द रिव्यूइंग, हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं आती है, हमारे पास वो ऐसे आता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि जी हम ये करना चाहते हैं, दुनिया में ये चीज़ बदलना चाहते हैं, पाकिस्तान में ये करना चाहते हैं, हमारे पास वो ऐसे आता है। और उसके अलावा जो डिफरेंट क्वेश्चंस है, क्या रिसर्च, क्या आपकी स्टेटमेंट है, बाकी चीज़ें हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती है। तो उसकी बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं, वो वापस आती है, वो ऑफकोर्स जीपे के हिसाब से देखेंगे सही। एक बंदा है जिसका 1.3 जीपे है, उसको तो नहीं देंगे ना, लेकिन एज लॉन्ग एज उसको देखते रीजनेबल है, बाकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको लास्ट में कंसीडर करते हैं फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। जी मैम, रीजनेबल क्या होता है? व्हाट डू यू कंसीडर रीजनेबल? 2.75 से ऊपर, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट ये रखी है। फुल बाइट आपको मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट देखिए फुल बाइट आपको मिल गई, आगे के तरीकेकार है। वहाँ पे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है IIE, वो फिर आपकी बिहाफ पे एडमिशन आपका भेजता है यूनिवर्सिटीज को। तो उन्होंने फिर देखते हैं कि एरिया क्या है, किस में रिसर्च करना है, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। दे बेसिकली शॉर्टलिस्ट 4 to 5 यूनिवर्सिटीज एंड देन दे सेंड योर एप्लीकेशन टू देम। आप खुद से अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी की अगर है ही पॉलिसी कि लेट्स से 2.75 से नीचे का उसने नहीं देना, तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बेशक आप जितने मर्जी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छे हो, आपको अगर वो नहीं दे सकेंगे तो दे विल नॉट सेंड योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड। जी मैम, फास्ट में तो फिर मतलब आप हिसाब लगा लेंगे 90% तो वैसे फिर रैंक अगर 2.75 रीजनेबल। देखिए उससे कम की भी ऐसा नहीं होता कि लोग अप्लाई नहीं करते, आप बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन मैंने कहा ना कि एक तो होती है कि आप फुल ब्राइट के थ्रू या किसी स्कॉलरशिप्स के थ्रू अप्लाई करें, और एक चीज़ होती है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ का अप्लाई करें, ठीक है। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती है कि जिसका लेट्स से कि अक्सर ये होता है कि फास्ट में जब लोग आते हैं, इनिशियली उनको सेमेस्टर सिस्टम की इतनी नॉलेज नहीं होती ना, उस सेटअप में आपने पढ़ाई की होती है, तो पहले 2-3 सेमेस्टर बड़े बुरे गुजरते हैं। उसका असर क्या होता है कि आपको जो एंड GPA है वो आपका कम हो जाता है। लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो कि कहती है कि आपके जो बेसिकली लास्ट सेमेस्टर्स का GPA है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट उनके पास पूरी जा रही है, ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि अभी क्या GPA, आप वो ये भी कहते हैं कि आपका जो बेसिकली लास्ट लेट्स से 2 इयर्स का GPA है, उसकी बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। आई नो अनदर स्टूडेंट फ्रॉम द फास्ट, उसका पहले 2 सेमेस्टर का बहुत बुरा था, ठीक है, उसके बाद उसने बिल्कुल इम्प्रूव किया, 3 से ऊपर लेके तो आया। लेकिन वही बात है कि स्कॉलरशिप उसको कुछ मिली थी इन द सेंस के जो लास्ट फ्यू सेमेस्टर्स का उसका GPA था वो काफ़ी अच्छा रहा। तो उस बेसिस पे अगर तो आपका GPA कम भी है, व्हाट यू कैन कंपनसेट फॉर दैट इज व्हेन आपका जब पर्सनल स्टेटमेंट लिखी जाती है ना, वहाँ पे आप लिखें, वहाँ पे आप कहानियाँ डाल दें कि भाई आपने इतनी हार्डशिप्स गुजारी थी जिसकी वजह से फास्ट में आप नहीं पढ़े, नॉट फास्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन पढ़ाई में आपको ये स्ट्रगल आई थी, स्टिल यू ओवरकेम दैट स्ट्रगल, यू हैव दैट पैशन, पर्सनल स्टेटमेंट्स पढ़ी जाती है वहाँ, ठीक है। तो वो आपका उस बेसिस पे भी देखेंगे कि ओके डज दैट पर्सन हैज समथिंग इन देम और नॉट, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द GPA थिंग और नॉट। तो ऐसा नहीं है कि 2.75 से GPA कम है तो दुनिया खत्म हो गई है। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, नॉट जस्ट US, यूरोप में भी है। अगर तो किसी तरह अपना GPA इम्प्रूव कर सकते हैं तो जरूर करें, बिकॉज दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप। बट अगर नहीं भी है तो स्टिल देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। आपको ऑफर्स क्या है? 203G in C block। मैम, जी PhD जब करनी होती है तो डू दे केयर अबाउट योर बैचलर्स GPA एट ऑल और नो? नो, चीज जो ज्यादा मैटर करती है वो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस मैटर करती है। फॉर द PhD यू नीड टू हैव द रिसर्च एक्सपीरियंस, स्पेशली अगर तो आप बेहतर जगह से करना चाह रहे हो। तो उस केस में अगर तो आप स्कॉलरशिप नहीं भी लेते, लेकिन अगर डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं तो बहुत प्रोफेसर्स खासतौर पर जिनके पास फंडिंग है, डू रिसर्च आउट कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीच आउट टू देम डायरेक्टली एज वेल। उसमें से बहुत से लोग हैं जो जवाब नहीं भी देंगे, पर कुछ हैं जो जवाब दे भी देंगे। लेकिन जब आप अप्लाई भी जब करेंगे तो दे कैन सी कि ओके दिस पर्सन रीच आउट टू मी इंडिविजुअली एज वेल, दैट मींस दैट दे वांट टू वर्क एज वेल। तो ये इस पे सारी चीज़ें पे मैटर करती हैं। आपका बैचलर्स का GPA इतना ज़्यादातर मैटर नहीं करेगा, लेकिन रिसर्च एक्सपीरियंस डज मैटर। जी हाँ जी। There is this ongoing conversation कि FAST के मुकाबले when you're applying for masters, FAST does not have a good research profile. तो वहाँ पर when you're applying to universities for a specific research purpose, masters के लिए, PhD के लिए, तो if you're a student from FAST, there's a high chance someone from NUST or another university की research profile अच्छी है
they would have a higher chance of getting selected even if you have a good GPA at first. वो select हो सकते हैं. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए वो क्योंकि रिसर्च में जब आप PhD पे अप्लाई करेंगे, PhD मेजॉरिटी केसेस में इट्स फंडेड. बहुत ही कम केसेस होते हैं, या मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं जो लोग अपने खर्चे पे PhD नहीं करते. ठीक है. और दूसरी बात ये कि वहाँ पे फिर वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफेसर से भी बात की हुई है, उनको नहीं पता होता कि आप फास्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज है, या नस्ट है, या लम्स है, क्या है. उनको ये चीज़ होती है कि ओके दिस पर्सन हैज सम रिसर्च एक्सपीरियंस, एंड मैंने कहा कि बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी बाकी प्रोफाइल बनाता है. बेसिकली आपका रिसर्च स्टेटमेंट जब आप लिख रहे हैं तो देयर यू आर सेइंग कि ओके दिस इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट यू गोना डू. वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, एंड देन दे सी कि ओके 1 or 2 पब्लिकेशंस है. मेरी जो मास्टर्स की पब्लिकेशंस थी वो बहुत अच्छी जगह पे नहीं थी मेरे हिसाब से. अगर मैं अब देखूँ तो मैं कहूँगी बिल्कुल बेकार पब्लिकेशंस अब अगर मैं देखूँ. ठीक है. और वो लिखी भी जिस तरह लिखी गई थी वो तो खैर मुझे पता है. उसके बाद से तो मैंने कहा था पता नहीं लोग कैसे रिसर्च करते हैं, लेकिन वो करने के बाद स्टिल आई गॉट दैट. और जब मैं अपनी फिर एडवाइजर के पास गई थी तो उन्होंने खुद मुझे कहा था कि हम पे जो रिसर्च स्टेटमेंट है वो उसकी बेसिस पे आपको देख रहे हैं. हम फिर इतना नहीं देखते कि इतना बस देखते हैं कि रिसर्च पहले दे नो हाउ टू डू द रिसर्च, वो है कि नहीं. ठीक है. आई थिंक दैट्स माय नेक्स्ट. यस अंकल. तो अजय को नहीं आता है. This is what I was talking about. Even though I'm teaching or things like that, there are still many issues with respect to the family that you need to take care of. I'll take last question and then please let me go. But other than that, my first time and the last time, I'll ask Yahya to share the presentation on my email address. If you have any queries regarding higher studies, do let me know. I would be happy to help you. Fulbright से related कोई question है तो वो भी जरूर पूछिएगा. और वैसे कोई कैरियर के हिसाब से भी I will happy to give you advice as well. जहाँ पे दे सके. हाँ जी. जो हमारी पर्सनल प्रोफाइल होती है जिसमें आपको जीपी के अलावा जज करते हैं, उसमें कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो उनके लिए इररेसिस्टिबल हो जाते हैं? कहाँ के लिए? फुलब्राइट के लिए जो चीजें यानी जिन चीजों को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, वो एक तरह से मजबूर होता है कि इसलिए सारा बच्चों में सेलेक्ट करना ही नहीं. वो इस तरह नहीं होता ना, क्योंकि आपके पास जो बाकी आ रहे हैं उनके हिसाब से कंपैरिजन किया जाता है, उस हिसाब से रैंकिंग की जाती है. ठीक है. कौन से ट्रेड्स हैं सबसे हाईएस्ट रैंकिंग? सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में आपके पास जो कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं ना, वो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग में आती है. समथिंग दैट यू डूइंग फॉर द कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, कम्युनिटी बेटरमेंट के लिए आप अगर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप किसी चीज में इन्वॉल्व रहे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है. ठीक है. तो जिसके थ्रू आप अपनी तरफ से लीडरशिप स्किल्स भी दिखा सकते हैं. एक ही चीज बहुत मैटर करती है. सेकंड चीज बहुत मैटर करती है कि आपको जो एरिया ऑफ स्टडी है उसको आप यहाँ पाकिस्तान में कैसे अप्लाई करेंगे. यही चीज आपकी जो ऐसे लिखा जाता है उसमें भी वैल्यू होती है. इसमें स्पेसिफिक हम रिव्यूअर्स के लिए क्वेश्चन होता है कि जिसपे हमने उसको जज करना होता है कि इनका जो बेसिकली उन्होंने कहा गया हुआ है, हाउ विल दे अप्लाई दैट वंस दे रिटर्न बैक टू पाकिस्तान. यही चीज इंटरव्यू में भी लाजमी पूछी जाती है. तो जितना आप अच्छा उसको बता सकते हैं उस हिसाब से द मोर पॉइंट्स दैट यू गेट. अब जिस तरह मैंने एक एप्लीकेशन रिव्यू की थी और उसमें क्वेश्चन यही था कि मतलब व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर यू फिनिश योर लेट्स से पीएचडी. उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था, उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि आफ्टर फिनिशिंग माय पीएचडी आई वांट टू गेट द एक्सपीरियंस इन द यूएस, सो आई विल वर्क फॉर सम इयर्स ओवर देयर. और उसमें कहीं पाकिस्तान आने का जिक्र ही नहीं था. तो वो स्ट्रेट अवे गोस टू रिजेक्शन. ठीक है. बिकॉज़ फुलब्राइट आप वो दे ही इसी ले रहे हैं, आप वहां जाए, एक्सपीरियंस ले, use that experience over here. तो वो जितना अच्छा आप डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं, that is a huge plus point for you. ठीक है. और उसके लिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, चाहे आप उसको लीड नहीं भी कर रहे, बी अ वॉलंटियर. आई नो टाइम लगाएंगे आप,
आई नो कि बाकी चीजें थोड़ी सी इफेक्ट होंगी, बट इट बिल्ड्स यू अप योर प्रोफाइल अ लॉट। ठीक है जी, सॉरी एक और क्वेश्चन एंड देन हाँ जी। Stepping away from masters and PhDs and थोड़ा undergrad की तरफ आ जाते हैं। Specifically, US makes you jump through a lot of hurdles. आपको SAT भी देना है, आपको IELTS वगैरह भी देना है, आपको एक holistic view लेते हैं आपका। अगर आप ऐसे ट्रांसफर स्टूडेंट जा रहे हैं? नहीं, I'm just asking. अगर तो बैचलर्स करना है यानी कि अंडरग्रेड स्टार्ट करना है, then you need to take the SAT course. अगर लेट्स से कि वहाँ पे भी है और यहाँ से भी होकर जाते हैं तो SAT स्कोर्स बिल्कुल मांगे जाते हैं। तब GRE मांगे नहीं जाता, GRE नॉर्मली आपके अंडरग्रेड हो या हायर एजुकेशन के लिए मांगा जाता है, लेकिन SAT स्कोर्स मांगे जाते हैं। और एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको लाजमी इंग्लिश का कोई ना कोई टेस्ट देना है, वो आपको लाजमी फिर देना होता है। नहीं, लेकिन my question was ये अप्रोच पाकिस्तान में feasible हो? What are your thoughts? क्योंकि पाकिस्तान पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें। The US makes you jump through a lot of hurdles. ठीक है। आपका एक holistic view लेते हैं। They make sure कि यार complete fit है हमारी यूनिवर्सिटी। तो लेकिन पाकिस्तान completely merit है। अगर पास में भी आए उनकी टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन। तो what US's approach be feasible Pakistan? No. And that's where my kids have been struggling, especially my daughter. She struggled with that a lot. क्योंकि वहाँ पे she got admission in very good universities. लेकिन मुझे था कि because बेहतर है कि अभी पाकिस्तान जाएं, अगर longer term अगर US में settle होने के तो it's better to spend the 2 years here, then go abroad. लेकिन वहाँ पे जब आप apply करते हो तो like I said कि you have a complete profile, academics and everything else. यहाँ पे जब आके आपने apply किया है, it's just academics, nothing else. अगर तो आपका गोल है कि यहीं से आपने मास्टर्स करना है, यहीं से आपका बैचलर्स करना है, then it is only the academics that is counting, unfortunately. अभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं आया कि आपके एकेडमिक्स के अलावा चीज़ें भी देखी जाए जो कि होना चाहिए. And I think one of the reason that we are just building machines is because of that as well. हमारा judging criteria ही सिर्फ academics रह गया है, बाकी चीज़ें नहीं हैं. I hope in the future it would get better, it would get changed, but right now it is not, unfortunately. So it is just academics here. अगर तो आपने यहीं पे बैचलर्स किसी ने करना है, दिन रात पढ़ाई करें, इधर उधर कुछ भी ना जाएं, no clubs, nothing else, no extracurricular activities, just focus सुबह दोपहर शाम on studies. Unfortunately, that is the case. Thank you so much. It was a pleasure talking to you all. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और बात ये करनी थी, जो जितना भी मैम रमोजा ने बताया, जितनी की डिस्टिंग्विश्ड प्रोफाइल है, लाइक यू ऑल सॉ ऑल ऑफ दैट, और एफडीसी में भी स्टार्ट में यही बताया था, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, जो अभी इंडस्ट्री का हाल है और जो ग्रेजुएट्स एंड द पीपल वर्किंग इन देयर, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड इट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए वी आल्सो टीम्ड अप विद डॉक्टर रमोजा, ये जो सारी excelling in whatever you're passionate about, or building the best profile possible, actually giving back to society. सारा wishy-washy motivational बातें मुंह से निकल रही है, लेकिन like actual progress जिस तरह से मैं देखना चाहता हूँ कि like people become masters of what they do, उस चीज़ को भी हम लोग अच्छा खासा incorporate करना चाह रहे हैं. We'll be working with very big names such as UN, Red Crescent, उनके लिए projects करेंगे. Those would reflect wonderfully on your CV. Develop your personality and your portfolio and the skill you have. वो सारी चीज़ें एक साथ होंगी. तो अभी तो ये FDC के नाम के अंदर है, लेकिन we are also creating a separate organization. We've also applied for a grant, एक US embassy के साथ, जिसमें Dr. Ramoza is the leader of the team. She's a Fulbright scholar as well. तो हम लोग इस तरह से it's a little effort to change the landscape, और हम लोग बहुत इसमें मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं. जितने लोग कोर्ट FDC के कोर टीम से जितने बाहर लोग हैं, इब्तिहाज, ताहा, इब्राहिम, हाशिर, माम, इन लोगों को ये सारी बात पहले ही पता थी to a degree, लेकिन अगर किसी और को ज्वाइन करना है and basically at least try to excel in whatever they want to do, they are very welcome to do so. और ये सारी बात थी. Thank you very much for your invaluable insights. Thank you.